संभार लिभाए कलुष कला धूप चंदन रे श्रीपद प्रांत रे धूप चंदन रे श्रीपद प्रांत रे हसुथिबी महकाई आसीछि ठाकुर चरण तलर फूलटी हेबा पाई ए तनकु मोर पूजा फूल कर चरणे शरण देई आसीछि ठाकुर चरण तलर फूलटी हेबा पाई आसीछि ठाकुर आसीछि ठाकुर आसीछि ठाकुर ଏଇଟା ବଡ଼ମା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ମାନେ ବଡ଼ମା କେତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ମାନେ ଗୋଟେ ସଫଳ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଗୋଟେ ସଫଳ ନାରୀର ହାତ ଥାଏ। ତେଣୁ ତେଣୁ ନାରୀଟି ଯଦି ସେଇଭଳି କର୍ମ ଦାୟୀ ହେବ ପ୍ରେରଣା ଦାୟୀ ହେବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ସେଇ ସ୍ନେହ ମମତା ଭିତର ଦେଇକିରି ତାର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ସେବା ସମ୍ଭ୍ରମ ଭିତର ଦେଇକିରି ସେ ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମେ ଯେ ସଂସାର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଛ ସେ ସଂସାର କେନ୍ଦ୍ର କର୍ତ୍ତା ଯିଏ ବା ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁମର ସେବା ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଭିତର ଦେଇ ପରିତୃପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଦେଖିବ ତୁମେ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ହେବ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବହୁଟି ଆସିଲେ ସେ ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କେତେ ସେବା ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଭଲ ପାଇବା କାରଣ କେତେ ରହୁଛି ସେ ଭଲ ପାଇବା କାରଣ ରହିବ କାରଣ ତାଙ୍କର ତାର ସ୍ୱାମୀ ଯେ ତାହାକୁ ବିବାହ କରିଛି ସେଇ ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ତାର ସ୍ୱାମୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତା ବା ଶାଶୁର ମୋ ଶାଶୁ ତାକୁ ଯଦି ମାନିକି ସେ ଚଳେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ ବା ସେବାର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ତାର ସଂସାର ସୁନ୍ଦର। ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅଟି ବାହାଘର କଲେ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଚାଲିଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ବିଦେଶକୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାପା ଏତେ କଷ୍ଟ ସହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଦେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ସୁବିଧା ଦେଇ ବଡ଼ କରିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡି ଲାଇକି ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଆଜିର ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ। ଆଜି ରହିଛି କ'ଣ ନା ଆମର ରହିଛି ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ସେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଆମେ ଆମର କାଳତି ପାଠ କରୁଛେ ଏବଂ ଆମର କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯଦି ଆମ ପରିବାର ପରିଜନକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ବଡ଼ ନାରୀର ବଡ଼ ଗୁଣ ହେଲା କଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଧର୍ମ ଶୁଶ୍ରୂଷା ସେବା ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ପଣ ପ୍ରେରଣା ବଚନ ଏଇ ନାରୀର କଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭିତର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ତାହେଲେ ତୁମର ନାରୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ସେ ତ ସାର୍ଥକତା ହେବନି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ନାରୀ ଜାତି ଆଜି ଅବହେଳିତ ହେଉଛି ଲାଞ୍ଛିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ନାରୀର ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବା ତାର ତ୍ୟାଗ ବା ତାର ଯେଉଁ ଦାବି ସେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେ ଯଦି ତାର ସଂସାରକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ ଦଶ ରାଜ୍ୟକୁ ରମତେ ଦଶ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ବୁଝାতে ରମତେ ତତ୍ତରେ ଦେବତା ଯେଉଁଠି ନାରୀମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସେଠି ଦେବତାମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଜି ନାରୀମାନେ କେତେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ ବା ସୁର ଅଧୀନତା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁର ଅଧୀନତା ହେଇ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମର ପରିବାର ପରିଜନ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ରହିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦର ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କର ଚରଣକୁ ଆମେ ବନ୍ଦନା କରିବା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ନାରୀର ନୀତି ନାରୀର ପଥର କଉଡ଼ି ଅନେକ କଥା ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଆମ ନିଜ ଜୀବନ ଚଳନରେ ଯଦି ପରିକଳନ କରିବା କିଛି ନହେଲେ ରାନ୍ଧନ ସବୁ ସମୟରେ ରୋଷେଇବାସ ସମୟରେ ଆମେ ରାନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂସାରର ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ ଏଡ଼େଇ ପାରି ସଂସାରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବା। ଏତିକି ବକ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।
की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर चंद्र जी की जीवन रे गुरु बिना गति तो नहीं जीवन रे गुरु बिना गति तो नहीं सदगुरु धर भाव सिंधु तरिबा पाई जीवन रे गुरु बिना गति तो नहीं संसार सागर घोर नहीं कूल नहीं तल संसार सागर घोर नहीं कूल नहीं तल चाहूं चाहूं जीव बेल चाहूं चाहूं जीव बेल अंधार घोटिया सई जीवन रे गुरु बिना गति तो नहीं अंधार सारा मूलक दिसे आलोक झलक अंधार सारा मूलक दिसे आलोक झलक मन रे निरेखी देख मन रे निरेखी देख गुरु चरण दिशई जीवन रे गुरु बिना गति तो नहीं सेही पदे लय कर भव भय हेब दूर सेही पदे लय कर भव भय हेब दूर से जे परम दयाल से जे परम दयाल डाकंती हाथ बढ़ाई जीवन रे गुरु बिना गति तो नहीं जाऊ रोग शोक भय मरण कुकर जय जाऊ रोग शोक भय मरण
शरण पाई जीवन रे गुरु बिना गति तो नहीं जीवन रे गुरु बिना गति तो नहीं सद्गुरु धर भव सिंधु तरिबा पाई जीवन रे गुरु बिना गति तो नहीं गति तो नहीं गति तो नहीं। घोरी रखिथा सुबास चंदन विश्वबंदन आसिबे तो घरे विश्वबंदन आसिबे तो घरे प्रेममय रूपे नाम बांटुछंती प्रेमे भ्रमी भ्रमी द्वारे द्वारे विश्वबंदन आसिबे तो घरे घोरी रखिथा सुबास चंदन विश्वबंदन आसिबे तो घरे। कुसुम धूप दुर्वाक्षत आदरे हृदय आसने बसा आदरे बसा हृदय आसने पाद धोई नेत्र नीरे विश्वबंदन आसिबे तो घरे घोरी रखिथा सुबास चंदन विश्वबंदन आसिबे तो घरे विश्वबंदन आसिबे तो घरे। कि सुंदर दिशे शुभ्र उपवित कटी तटे श्वेत वस्त्र परिहित कटी
ତଟେ ଶ୍ଵେତ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ କରୁଣା নিরিঝর ঝরে বিশ্ববন্দন আসিবে তো ঘরে ঘরি রখিথা সুবাস চন্দন বিশ্ববন্দন আসিবে তো ঘরে বিশ্ববন্দন আসিবে তো ঘরে প্রেমময় রূপে নাম বাଣ୍ଟୁଛନ୍ତି প্রেমে ভ্রমি ভ্রমি দ্বারে দ্বারে বিশ্ববন্দন আসিবে তো ঘরে বিশ্ববন্দন আসিবে তো ঘরে বিশ্ববন্দন আসিবে তো ঘরে। আপনার উঠিনি না গো सेती सकाशे कहे कथा आपण गुरु ग्रहण जहा दक्षिणा देबे दे दियंतु किसी कथा नहीं नियारी के माने के आबे सब रेडी अछि मां निहारी का मालिक के नियारी के तुम्हें सागरी का मालिक के मैं सुलोचना भाई अपन भाई को नहीं दरकार सुलोचना भाई के हां मैं सुनता सुलोचना भाई मु स्टापलर मगै छी सेम के तो दिया जाय छै निरुपमा साहू भाई निरुपमा भाई के टिके बाकी दीटा गोटे नहीं जा गोटे दे दियो से भीतर निरुपमा भाई हां हां एडी जगह हम एउठा देखि निरुपमा भाई सिया दरकार हो हमरे आगे आगे जय गुरु जड़े माँ की नहीं आपको किए कहि तांगा ना कहले कि ने माय माय लियो चाकू को नहीं होछ सेरा दिया रे नहीं बोल अब देखि कहता कने जा से जाई कि बसी जान नियंती ने मा बसी जान जथा जगह
धर आपको धर माँ सही लाइन धर आपको धर रुआ 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 आपको नहीं जाओ धर आवाज कलेक्शन कर जा तो पछी कलेक्शन कर ଆମେ ଦକ୍ଷିଣଟା ଗୁରୁସ୍ଥାନ ଭଲ ନିହାତି ଦବା ଦରକାର। से जानी ना ଜଣେ ପଚାରିବ କହିବ ଏ ନିଅ ନିଅ କିଏ ବାବୁ କହିଲା? अस्मिता दास किए हेलो 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 सुलोचना बारी हेलो सौदामिनी दास सौम्यरंजन राव समीरा कुमार दास प्रियतोष साहू वंदिता शतपथी घनश्याम दास किए ପ୍ରକୃତି ମହାନ୍ତି राहुल कुमार भोई नुआ लोक गुड़ा लोक बसा से माँ जमी सजेक रखी ना से भाया रख हाँ टंका खोला खाली रहा विजय कुमार विश्वाल काटले सब विजय 5 टंका सब रखु पाखु 3 टंका मालिक खुशी है एटा समस्त राति प्रार्थना हो और समस्त जागरण करो दी लाइन गेट को फाका कर दियंतु मेन गेट को फाका करी रास्ता पाखु जांतु नाला पल्ला पाखु पळै जांतु जोटा कि मेन गेट फाका ले बाबा या जीवा पे सुविधा हमारा सुविधा पाई ठीक है फांका जगह छिड़ा हुंतु जमते कई पेला थेला न हुंती कारण अनेक छोट पिला अछंती वृद्ध लोक माने भी अछंती सेपटे बस देखिए जो भाई मुझे बाबा दर्शन एवं उद्बोधन शुणा आसती समस्त पेंडाल भर पलि आसतु आमर दरी पड़गला आपण सब सीधा बसतु दयाकोरी से रास्ता जाम करूँ ना सब ये पेंडाल को पलि आसतु ये पूज्यपद बाबाईटा यही जगह स्पीच देवे गाड़ी आसवा बहुत कष्ट हम दयाकोरी आम अनुरोध करूँ शारदा भाई एवं तफान भाई भलेंटियर भाई अनुरोध करूँ व्यक्तिगत लोक मान खोजी गाड़ी गुड़ सब साइड करूँ केनाल बंधर
ହଉ ରାମ ଯାଇଥିଲ ନା ଆମେ ଯାଇନି ଖାଲି ଆମ 22 ମିନିଟ ଲୋକ ଆଣିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ସୁବିଧା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇବୁ 4 ଦିନ ଆଗେ तो ता पूर्व आमे अनुरोध करछु दया करके पेंडाल में फांका जगह पड़े आसतो बाबा एक जगह बसिबे बड़े फोटो उठा मोर दर्शन प्रणाली କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେ କୋଉଠି ଏଟା ତମ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲୋକଙ୍କର ଆମର ସେ ବସ୍ ଯାଇଥିଲି नई हास्य आसी नहीं केबे से हताश ही नहीं मो प्रभु आसीबे निश्चय आसीबे आज सही परम पुरुष सही प्रभु आपण सामना को निजे आसुचंती एही जो परम सौभाग्य एहा मनीष जीवन रे सहज रे प्राप्त हुए ना दया करी आपण माने धैर्य धरंतु शोष लागुची परिश्रम लागुची एही कथा कही बाहर को उठी जिवे नहीं विभिन्न प्रकार बहाना अछि आपण जानिछथि कि नहीं जतबे पुरुषोत्तम को निकट को आपण जीवा को चाहती जतबे भगवान को निकट को आपण जीवा को चाहती सेतबेले आपण को भीतर लुचि रहितिबा शैतानटा चेष्टा करे आपण को ताक निकट रु दूरेई नेबाकू सेही शैतान न खेल हेउची केतबेले शोष सेही शैतान न खेल हेउची केतबेले आखिर निद सेही शैतान न खेल हेउची केतबेले मन को अन्य मनस्क करी पकेइबा सेही शैतान कबळरु निज को रक्षा करी भगवान को शरणापन्न हेबा पई दृढ़ संकल्प नै आपण माने एक निष्ठ भाव रे सेही परम पुरुषों को अपेक्षा करी बसंतु सामने श्री ठाकुरंकर विग्रह सामने श्री दादांकर विग्रह सेही पुरुषोत्तम नर विग्रह को दर्शन करंतु स्वल्प समय परे तांकर सूक्ष्म स्वरूप सेही सत नाम को ग्रहण करिवे पूजनीय बाबा एदांक माध्यम रे हुए तो अनेक मनीष दीक्षा ग्रहण करती मात्र तांक माध्यम रे दीक्षा ग्रहण करिबा जी ऋतिक तांक माध्यम रे दीक्षा ग्रहण करिवे जी आपणकर ऋतिक सत्संग जगत तांको जानिछि पूजनीय बाबा इदा बोली जी आपणकर ऋतिक से हेउचति बाक सिद्ध कृष्णचंद्र बारिक के हाथ उठेले भाई कृष्णचंद्र बारिक कृष्णचंद्र बारिक कृष्णचंद्र बारिक के अछंती हाथ उठेबे जरि थिबे किबा छिडा हुअंतु हिमांशु भाई एठी कृष्णचंद्र बारिक बाहर करिवे नाही बेग ऊपर केवल 4टी प्रणामी सजई की रखिबे डाहाण रु बाकू 1 टंका 2 टंका 3 टंका 5 टंका ता छड़ा खंडिए दीक्षा पत्र अछि आमे दीक्षा पत्र ताकू कहउचंती जा देहरे आपणकर ना गा ठिकाना लेखा अछि एवं ता देहरे आपणकर 2टा दस्तखत किबा 2टा टिप लागि सेईटा को सामने रे रखिला बेले सेई दस्तखत बा टिपटा को ऊपर को करके रखिबे जदी कहा पाखरे प्रणामी न थाए दीक्षा पत्र न थाए किबा से बैगटा न थाए आपण हाथ उठेइले किबा छिडा हेले हमें जाई आपण को पाखरे सेई व्यवस्था करि देबो मला मला मा एपडू पळे असन से लाइन दा पीछे कोन होई पानी जो दिखन लागो पानी अरे आ कोन काई देखंतु पुरुषोत्तम को सहित कपटाचार भलो नुहे वॉलंटियर भाई माने शुणु आपण सामने जो प्रणामी रही प्रणामी गुड़ा ठीक से बुझी नियंतु वॉलंटियर माने चेक करंतु देखंतु प्रथमे आपणकर दीक्षा पत्र रे 2टा दस्तखत होईछि कि नाही बा टिप चिन्ह रहिछि कि नाही जदि कार न थाए तबे पाखरे थिबा वॉलंटियर को जणांतु आपण मानको सामने रे 4टा प्रणामी रहिछि 1 2 3 और 5 डाहाणरु बाम क्रम रे 1 2 3 और 5 1 टंका होची इष्टवृत्ति 2 टंका होची ऋतिक दक्षिणा 3 टंका होची आचार्य प्रणामी करिवे जेता बेले सबुठारु कम प्रणामी बा ऋतिक दक्षिणा धरिबा को कहिबे सेता बेले 2 टंका धरिबे जेते बेले आचार्य प्रणामी धरिबा को कहिबे सेता बेले 3 टंका धरिबे आ जेते बेले सबुठारु बेसी प्रणामी बा ठाकुर प्रणामी धरिबा को कहिबे सेता बेले 5 टंका धरिबे समस्त ठीक भाव रे बुझे नियंतु 4टा प्रणामी रहिति डाहाणरु बाम क्रम रे 1 2 3 और 5 एकटा हला इष्टवृत्ति 2टा हला ऋतिक दक्षिणा 3
तीन हूँ आचार्य प्रणामी और 5 हूँ ठाकुर प्रणामी। भाई सेठी बसांतुनी ठाकुर देखा जाऊनांती आउ टिके पछकु बसा। दयाकोरी आम ये जो पेंडाल यही जगह पूज्यपाद बाबाईदा बसबे। निवेदन करी सुजोग वंचित हुआ ईश्वर सानिध्य लाभ कर वंचित हूँ ना सेठू शीघ्र दयाकोरी उठिक जातु बाबाईदा आसिले दीक्षा देवे दीक्षा दे सारे सी आसिक प्रवचन देवे तेणु जी दीक्षा नई से आउ थे कौन से उठी जातु और दीक्षा ग्रहण करूँ पछपटा दीक्षा गृह जल्दी 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 दीक्षा गृह जल्दी जल्दी ये जीवन ईश्वर को ग्रहण करेंगे तथाकथित भाव ईश्वर कौन जाने ईश्वर मागे କିଛି କରିବି ନାହିଁ ମାଗିବି ଅବମାଟା ମୋତେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ତାହା ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଠାକୁର ମୋ ଭିତରେ ବଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭରିଦେବା ରଖିଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ନ୍ୟାୟ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ଭିତରେ ନିଜେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ପରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ସଂସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିକି ଯିବ ସେତେବେଳେ କାମ ପାଦରୁ ଆମେ ବାହାରିଯିବା ସେତେବେଳେ ସଠିକ୍ କିଛି Thank you.
मीरा भाई आसे भाई आसिले 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 भाई आसिले कही दियंतु आगो तो उद्बोधन देव नाई ना से उद्बोधन देव पड़े भी हो मेरा काम सबसे कम रहता है। तो हमारे घर के जो गुरुजन हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग बहुत काम कर लेते हैं, मेरे भाई लोग हैं बहुत काम कर लेते हैं, मेरा काम सबसे कम रहता है। और मेरे सहकर्मी लोग वो लोग अनंत काम कर लेते हैं। तो मेरा मन में ऐसा खटकता था, तो मैंने उन लोग का सहयोग मांगा, बोला कि आप लोग हर नगर में जाइए, हर जगह जाइए, और जहाँ जाएंगे वहाँ जाके आप लोग एक बात बोलिएगा, दादा लोग माँ लोग को बोलिएगा, वो लोग जाजन करके लाएंगे। और एक बात है, जहाँ लाएंगे वहाँ हम जाके दीक्षा देंगे। और एक बात भी हमने बोला था कि हमने कोई जगह में किसी से व्यक्तिगत बात नहीं करेंगे। हम देवघर में जितना भी समय मिलता है हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा बात करने का, लेकिन यहाँ हम किसी से व्यक्तिगत बात नहीं करेंगे। जो भी बोलेंगे आमने सामने आवाज में बोल देंगे। वहां से यदि उन लोगों का कोई मदद मिल गया तो वो लोग उसी को लेके चलेंगे। सबसे पहली बात है, विद्यार्थी जो लोग यहाँ आए हैं उन लोग के लिए मेरा कुछ कथा है। विद्यार्थी लोग, आप लोग मान लीजिए अभी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल से आप लोग गुजर रहे हैं, माँ बाप के छत्र छाया में हैं। इस अवस्था में आप लोग को उचित है कोई भी विद्या को हासिल करके, ताकि आप भविष्य में अपना खुद का पेट, परिवार का पेट पाल सके, यदि संभव है। देखिए दादा एक बात बोले, हम कोई मजाक नहीं करते, कोई बाबा जी नहीं है, हम एकदम साधारण सा आदमी हैं, एकदम मामूली सा एक इंसान हो, ठीक है। मेरा ऐसा कोई प्रचार वगैरह कुछ नहीं चाहिए। जो भी है आप लोग का उठाना है तो दूर से उठाइए। तो एक बात है, तो मैं जितने विद्यार्थी हैं उन लोग को बोलते हैं विद्या अर्जन के लिए आप कुछ भी कीजिए। अभी इच्छा नहीं कर रहा है, समय बर्बाद करना चाहते हैं, कुछ भी कीजिए, सब चलेगा। लेकिन उस समय बर्बाद का समय और नहीं आएगा, क्योंकि माँ बाप सब समय नहीं रहते हैं। वो लोग एक दिन हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे, और जब चले जाएंगे पतझड़ के मौसम में हम लोग बहुत तापित सूरज के नीचे पड़ना पड़ेगा। हम लोग का जीवन जिंदगी बहुत कष्ट बनने का है। इसलिए माँ बाप के छत्र छाया में कोई विद्या को अर्जन कीजिए। और विद्या अर्जन के लिए सबसे पहले चाहिए आनंद में रहना। आनंद में जो रहता है वो एकाग्र रह सकता है। तो विद्यार्थी के लिए दो ही चीज जरूरी है, एक है एकाग्रता, एक है निष्ठा। ये एकाग्रता और निष्ठा रहेगा तो विद्यार्थी कोई भी विद्या अर्जन कर सकते हैं। और ये दोनों में के कोई नहीं रहेगा तो विद्यार्थी का कोई विद्या अर्जन नहीं संभव है। वो कितनी भी मंदिर में पूजा करे, कुछ भी करे, यही दो चीज पहले जरूरी है। एक है एकाग्रता, एक है निष्ठा। आप नाच सीखना चाहते हैं नाच सीखिए, गाना सीखना चाहते हैं गाना सीखिए, खेलकूद सीखना चाहते हैं खेलकूद सीखिए, पढ़ाई सीखना चाहते हैं तो पढ़ाई सीखिए। जो भी अपना सीखना चाहते हैं उस शिक्षा के ऊपर आपका भविष्य का, आपका पेट और परिवार का पेट चलने वाला है। इसलिए अभी से ठीक से अपना जिंदगी बनाने का कोशिश शुरू कर दीजिए। जो लोग नौकरी में हैं उन लोग के लिए मेरा एक सलाह है कि यहाँ कोई भी एक छलांग लेके 2 मंजिल पर नहीं चढ़ता है। 2 तला में चढ़ने के लिए सीढ़ी पर चढ़ के हमको 2 तला उठना पड़ता है। तो सीढ़ी पर यदि एक एक पायदान मिलता है, उस पायदान को हमको पसंद नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं उस पायदान में, उस सीढ़ी में हम कदम रखते हैं। उस कदम रख के दूसरा सीढ़ी को खोजते हैं, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा करके करके हम मंजिल से पहुंचते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं या नौकरी के तलाश में हैं
कोई भी नौकरी हाथ में मिल जाए उसको लेके आगे की ओर बढ़ते रहिए। यदि कोई अच्छा नौकरी मिल गया तो उसको लेके चलते रहिए, नहीं मिला तो ऐसा करके सीढ़ी तोड़ तोड़ के अपना मंजिल ढूंढ लीजिए, लेकिन बैठे मत रहिए, बेफिजुल बैठे मत रहिए। अब क्या पास है क्या फेल है उससे मतलब नहीं, लेकिन एक काम से जुटे रहिए जिस काम से आप लोग जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। जो लोग व्यवसायी हैं उन लोग के लिए सबसे पहले बात है, देखिए दूध देंगे तो उसे छेना बनाने के लिए एक कायदा चाहिए, तो जिंदगी में पैसा उपार्जन के लिए भी एक कायदा चाहिए। व्यवसाय का सबसे बड़ा कायदा है ठाकुर जी का व्यवसाय का पंचनीति पालन करना। पंचनीति पालन करने से क्या होगा, जो व्यवसाय का जो ढांचा है वो ठीक रहेगा। अब ये ढांचा को पंचनीति, जो ठाकुर जी का व्यवसायिक पंचनीति है वो मंदिरों में जान सकेगा, या तो कोई कर्मी लोग से जानकारी लीजिए, या तो कोई केंद्र से जानिए, या तो ठाकुर जी का किताबों से जानिए, या लोग जो लोग चर्चा करते हैं उन लोग से जानिए, लेकिन जानकारी लेके व्यवसाय शुरू कीजिए। और व्यवसाय में जो निवेश कीजिएगा उसका 2% यानी कि 2% आपका रिटर्न आना चाहिए। यदि 100 रुपया लगाते हैं तो 2% रिटर्न आना चाहिए। 2% रिटर्न नहीं आएगा तो व्यवसाय का पंचनीति में आपका कोई खोट हो रहा है। यदि खोट हो रहा है तो सबसे पहले व्यवसाय को कहाँ प्रॉब्लम आया है, क्या नियम का पालन नहीं हो रहा, क्या नियम का उल्लंघन हुआ है, उसको ढूंढ के उसको मरम्मत कीजिए, फिर व्यवसाय शुरू कीजिए। और यदि आपका नजर में ही नहीं आ रहा है तो व्यवसाय बंद कर दीजिए। जरूरत होगा तो नौकरी कर लीजिए कुछ दिन, उसके बाद जरूरत होगा तो जब आपका नजर में आएगा कि हाँ हम इसमें गलत किए थे तब फिर से शुरू कीजिए। नहीं तो क्या होगा, आप इतना कर्ज में डूब जाएंगे कि आप चल भी नहीं सकेगा, सम्मान सहित समाज में नहीं चल पाइएगा, घर बार सब बर्बाद हो जाएगा, आपका जो पूंजी है वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए व्यवसायी आदमी आप लोग ये मान के चलिए, जो लोग आप लोग में से पिता माता हैं, संतान का शादी के लिए सोचते हैं, तो उन लोग को हमारा सलाह है कन्या को श्रृंगार सिखाइए। श्रृंगार का मतलब है खाली सजना धजना नहीं, श्रृंगार का मतलब है अपने को उपस्थापना करना, अपने को प्रेजेंट करना, स्थिति के अनुसार हमको उपस्थापित किया खुद को, कैसे कथा बोलना है, कैसे आचरण करना है, कैसे चलना है, कैसे घूमना है, किस जगह में कैसा पोशाक पहनना है, यहाँ तक भी कैसे हमारा बर्ताव करना है अतिथि से, ये समूचा अभिव्यक्तियां कन्या को सिखाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर भविष्य टिका है, एक परिवार बसेगा उसके ऊपर। ये सिखाइए। और लड़का को सिखाइए कर्म प्रधानता। बोले तुम्हारा चेहरा से कोई प्रभावित नहीं होगा, चेहरा से तुम्हारा कोई मूल्य नहीं, तुम्हारा क्या कर्म है, कर्म के आधार पर ही तुम्हारा परिचय है। और फिर अपने जो रिश्तेदार हैं, जो सजाती के आदमी हैं, जो हितैषी जन है, उन सबको बोलिए सहयोग संजोग शादी के लिए जरूर आ जाएगा। जो लोग बीमार हैं उनके लिए एक कहानी हम बोलते हैं। हमारे आश्रम का एक लड़का है, उसका बहुत बीमार हो गया, उसका बेटा का 7-8 साल का था, खेल कूदता था, अचानक बिस्तर में पड़ गया, चल नहीं पा रहा था। तो हमको आके बोला कि बहुत इलाज कर रहे हैं, कोई उपाय नहीं हुआ। तो मैंने उसको बोला कि इंटरनेट को खोलो। ये इंटरनेट को खुलवाया जब, तो इंटरनेट खोलने के बाद जो रोग निर्णय किया गया वो रोग देखा गया कि एलोपैथी चिकित्सा में नहीं था। एलोपैथी चिकित्सा में जैसा नहीं था तो मैंने आयुर्वेदिक कॉलेज का यहाँ शिक्षक थे भुवनेश्वर में, उनको फोन करवाया। उनको फोन करवाने से क्या हुआ, उन्होंने एक दवा बोल दिया, जो दवा देवघर बाजार से लेके उस लड़का को दे दिए, उसका बेटा को खिलाया। जो इतना दिन से बीमार था वो स्वस्थ होकर खेलना शुरू कर दिया। फिर तो मैंने यही बोलना चाहता हूँ, आप लोग बुजुर्ग आदमी जो लोग नहीं पारेंगे, लेकिन घर के जो बच्चे हैं वो लोग इसमें शातिर हैं, इसमें एक्सपर्ट हैं, उन लोग की मदद लीजिए। वो लोग अपने मोबाइल से हो या कंप्यूटर से हो, वो लोग इंटरनेट खोल के आपका क्या रोग हुआ है उसका निर्णय में सहायता कर देगा। फिर आप जानिए आपका रोग में क्या करना उचित है, क्या अनुचित है। फिर डॉक्टर के पास जाइए, सत दक्ष शुभानुध्यायी कोई डॉक्टर का ढूंढिए, उनके पास जाइए और जाके चिकित्सा शुरू करवा दीजिए। और अंत में एक बात है, बचपन में हम जब भूत का भय पढ़ते थे तो बोलता था जब राम राम बोलने से भूत का भय दूर हो जाता है। तो हम अभी बोलते हैं कि आप आनंद में रहिए तो भय आपका दूर हो जाएगा। भय दूर करने के लिए ही हमको आनंद में रहना पड़ेगा। तो मेरा जिंदगी कैसा है संसार में जिसको हमको आनंद में बनाना पड़ेगा।
करिएगा। पहले तो देखें घर परिवार का स्थिति कैसा रहता है। घर परिवार में मान लीजिए एक पति पत्नी एक साथ रहना शुरू किया तो शुरुआत में आवाज निकलता है और कुछ दिन जाने के बाद उसी घर से आवाज निकलता है हाउ 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 हाउ, जैसा लगता है कोई भौंक रहा है भीतर। या इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि हम लोग हृदय को दूर कर देते हैं। कभी कभी पति पत्नी अपना हृदय को दूर कर देते हैं। सब में नहीं होता है लेकिन किसी किसी में ऐसा होता है, हृदय दूर हो जाता है। हृदय दूर हो जाता है पति पत्नी में। संतान चाहता है हमको ये चाहिए, लड़की चाहता है ऐसा चाहिए, पति चाहता है ऐसा चाहिए, पत्नी चाहता है ऐसा चाहिए। सब कोई अपना स्वार्थ का बात बोलते हैं अपना संसार में। और जब ही हृदय खोलते हैं तो उसमें से ऐसे आवाज निकलता है, ऐसा झगड़ा पैदा हो जाता है कि लगता है कि मानो हम लोग का हृदय एक जगह में नहीं है। सब अपने जगह में एक छत के भीतर हमारा परिवार जैसा बिखर गया है, एकदम अलग थलग हो गया, उलट पुलट हो गया। सामाजिक स्थिति में भी हम लोग जब हृदय खोलते हैं तो धक्का लग जाता है। दोनों दोस्त हृदय खोला, झगड़ा शुरू हो गया। दोनों आदमी में हृदय खोलने से ही झगड़ा पैदा हो रहा है। दोनों कर्मी जो ठाकुर जी को लेकर चलते हैं, दोनों में यदि ठाकुर जी किसी के पास नहीं है तो झगड़ा जरूर होगा। और यदि किसी के पास एक के पास भी ठाकुर जी रहे तो झगड़ा बंद हो जाएगा। क्योंकि जो ठाकुर जी के पास है, जिसका हृदय में ठाकुर है, वो कभी झगड़ा नहीं करता, वो झगड़ा को एकदम निष्पत्तिकरण कर देता है। लेकिन जिसके पास ठाकुर जी नहीं है वो झगड़ा करेगा ही। वो ठाकुर जी का कर्मी हो चाहे बाबाईदा हो, जो भी हो, यही नियम है। तो ये जो हृदय नजदीक में रहकर भी हम दूर कर देते हैं, ये तो एक अमंगल का सूचना है। हमारा परिवार में हम अपने बच्चे को क्या बोलते हैं? जो वो आके हमको बोलता है बाइक चाहिए आज, तो हम बाइक देने का कोशिश करते हैं। कोई बोलता है कि आज कपड़ा चाहिए, वो देने का कोशिश करता है। पति बोलता है हमको ऐसा चाहिए, तो पत्नी वो कोशिश करता है। पत्नी बोलती है हमको ये चीज चाहिए, तो पति आके देता है। तो ये हर चीज स्वार्थ का पूर्ण हो जाता है जब तब परिवार वाले या समाज वाले बोलता है आभारी से थैंक यू। और इस थैंक यू को हम लोग सोच लेते हैं ये प्रेम है, ये प्रेम का बंधन है। लेकिन प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई शर्त नहीं है। हमारा पत्नी खाना नहीं पकाएगी फिर भी हम उसे प्रेम करेंगे। हमारा पति हमका रेख देख नहीं करेगी फिर भी मैं उसे प्रेम करूंगा। मेरा बेटा हमसे कुछ नहीं मांगेगा और हम भी उसको कुछ नहीं देंगे। मेरा बाप हमको कुछ नहीं देगा फिर भी मैं बाप से प्रेम करूंगा। मेरा माँ हमको सलवार कमीज कुछ नहीं देगी फिर भी मैं उसे प्रेम करूंगा। प्रेम के लिए कोई शर्त नहीं रहेगा। जहां प्रेम है वहां कोई शर्त नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। जहां स्वार्थ और शर्त आ गया वहां प्रेम नहीं है, वहां आता है थैंक यू। आभारी से हम लोग पाने के बाद, उस स्वार्थ का पूर्ण होने के बाद हम लोग बोलते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इसको सोचते हैं हम लोग यही प्रेम है, यही प्रेम है, यही प्रेम। लेकिन हम बोल रहे हैं ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम का एक ढोंग है। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं रहेगा, कोई शर्त नहीं रहेगा, यही उपाय है। हम बेटा को बोलते हैं बेटा झूठ मत बोल, और जब पैसा लेने के लिए आदमी आता है तो बोलते हैं जा बेटा बोल दे बाप घर में नहीं है। माँ कहती है बेटा बाप का कहना मान, बाप बुजुर्ग हैं। और अंत में देखते हैं रात को माँ से बाप का झगड़ा हो रहा है। तो हमको पता चल गया कि समाज में अच्छा बात को सुनना चाहिए लेकिन खराब बात को करना चाहिए। इसलिए समाज में हमको कोई भी अच्छा स्कूल में दाखिल किया जाए, हम जाके मंद कथा सीखेंगे, मंद आचरण सीखेंगे, खराब आचरण सीखेंगे, गाली गलौज सीखेंगे, अंत में नशा भी सीख के जाएंगे। बहुत बड़ा ऑफिसर बनेंगे तो घूसखोर बनेंगे, बहुत पावरफुल होगा तो सताएंगे दूसरे को, सताने वाला आदमी बन जाएंगे। समाज का कोई कल्याण हमसे नहीं होगा, लेकिन क्षमता होगा, लेकिन कल्याण नहीं कर पाएंगे। यही है सामाजिक चित्र होगा मेरा पुत्र के चित्र। हम बनाने चले थे मधुमक्खी, उसको वो बन गया है मलमक्खी। जाके जहां जहां पैखाना देखता है वहीं जाके बैठता है, मल में बैठता है, गंदगी में बैठता है और गंदगी को ही लेके आता है घर से। यही उसका स्थिति हो चुका है हमारा पारिवारिक जीवन। कहीं कोई प्रेम का बंधन या संधान हम लोग को कभी कभी नहीं मिलता है, निराश हो जाते हैं। जिंदगी कैसा है? एक तेज नदी जैसा, वहां जैसा मानो स्रोत से एक नदी बह रहा है,
उस स्रोत में यदि नदी को नाव हमको ठीक रखना है तो गाछ एक है पार में, उसके साथ नाव को बांध लेना है। ये जो नाव को बांध दिए यही है बंधन, यही है दीक्षा। इस बंधन यदि रहेगा तो नाव उस तेज स्रोत में हिलेगा डुलेगा लेकिन भागेगा नहीं। और यदि बंधन टूट गया तो वो जाके निकाल के कोई धुआंधार में जाके गिर के चूर चूर हो जाएगा, उसको कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। क्यों दीक्षा लेंगे? एक गाय था जो साथी सब उसका चला गया मालिक के साथ, लेकिन वो घास का लालच में रह गया, लालसा में जंगल किनारे। अब एक बाघ शाम में शेर निकला, बाघ निकला शिकार के लिए, तो देखता है एक गाय है, तो गाय देखकर ही वो उसके पीछे दौड़ा। गाय उससे भागने के लिए एक कचरे में जाके फंस गया। अब कचरे में जैसा फंसा तो बाघ भी छलांग लगा के कचरे में जाके बाघ भी खुद फंस गया। अब दोनों वहां फंसा हुआ है, कोई निकल नहीं पा रहा है और एकदम उस कचरे में फंसा हुआ है जब, तो बाघ बोला देख ये कचरा कुछ देर में सूख जाएगा, तब मैं निकाल के पहले तुझको खाऊंगा। तो गाय बोलता मेरा कान बहुत सीधा है, सीधा कान से मैं सुनने में आ रहा है कोई घंटा बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, आदमियों का चहल पहल आ रहा है, यानी कि मेरा एक मालिक है, मेरा मालिक है जो हमको रक्षा करने के लिए हम घर नहीं लौटे हैं, इसलिए उसको उद्धार करने के लिए चले आए हैं। साथ में बहुत आदमी है, उसके पास भाला है, लाठी है, मेरा तो मालिक है, मुझे तो उद्धार करके ले जाएगा, लेकिन तेरा क्या होगा, तेरा क्या हालत होगा, ये पहले सोच। यही कारण है हम लोग दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद हम क्या सोचते हैं, हम मंदिर में जाके माथा टेकेंगे और मन्नत पूर्ण हो जाएगा। हम भगवान को व्यवहार करेंगे बाप का नौकर जैसा, बोलेंगे आज ये चाहिए कल वो चाहिए, और भगवान हमारा जैसा बाप का नौकर है आके बोलेगा प्रभु आज क्या ऑर्डर है, आज मेरा बेटा का नौकरी लगा दे, आज क्या ऑर्डर है प्रभु मेरा बेटी का शादी ठीक करवा दे, आज क्या ऑर्डर है प्रभु आज मेरा माँ का घुटने में दर्द है उसको ठीक करा दे। जैसा हम भगवान को ऐसे इस्तेमाल करते हैं, खाली मस्का लगाने के लिए हम लोग हे भगवान बोलते हैं शुरुआत में, बाकी का तो जैसा करते हैं वो तो जैसा कि मानो ऑर्डर देते हैं। ये ऑर्डर पूर्ण करने का क्षमता भगवान में नहीं है, सीधी बात बोलते हैं। भगवान का इतना क्षमता रहता तो उनका पत्नी को कोई उठा के ले जाता, इतना मजा। भगवान का इतना क्षमता रहता तो वो तो स्वयं भगवान थे, तो समुद्र के किनारे जाके पुल बनवाना पड़ा क्यों? वो तो भगवान थे, मैं भगवान आशीर्वाद करता हूं समुद्र पर पुल बन जा, नहीं हुआ। पुल बनवाना पड़ा, आदमी जुटा के पुल बनवाना पड़ा। रावण से जब भेंट हुआ मैं भगवान हूं रावण तू मर जा, नहीं हुआ। खुद को नहीं संभाल पाते हैं, उसको तो युद्ध करना पड़ा। तो कर्म से मुक्त भगवान भी नहीं है और हम सोचते हैं हम इससे मुक्त हो जाएंगे, ये संभव ही नहीं है। हम लोग में अनेक है जो लोग दीक्षा लेके सोचते हैं कहां कोई तो असर नहीं मिल रहा है, पंखा लेके बैठे रहोगे 1000 साल इस पंखा हवा नहीं देगा, पंखा को हवा लगाने के लिए हवा खिलाना पड़ेगा, दीक्षा लेके कुछ काम करना पड़ेगा तब इसका पूर्ण होगा। सबसे पहले हम जो सामाजिक स्थितियों में पढ़ते हैं उसमें हम क्या करते हैं, विचलित हो जाते हैं। कोई गाली दिया हम भी गाली देते हैं, कोई ढेला मारा तो हम पत्थर मार देते हैं, कोई ऐसा आचरण किया जिस आचरण हमको पसंद नहीं तो हम भी उसके लिए वैसा ही आचरण लौटा देते हैं। लेकिन जब ठाकुर जी को पकड़े हैं तो सोचना चाहिए मेरे ठाकुर जी इस स्थिति में आप क्या करते हैं, आपका आचरण इस स्थिति में क्या होता, वही आचरण मैं करूंगा। ये आचरण को सोचना पड़ेगा क्योंकि हमारा मन है। जानवर से इंसान का फर्क क्या है, जानवर सोचता है आहार निद्रा मैथुन, और इंसान आहार निद्रा मैथुन के बाद भी वो मन से कुछ सोच सकता है कि सोचता है मेरा जिंदगी और भी सुंदर कैसे बनाए। खाली ये 3 चीजों से हम बंधे नहीं रहेंगे, हम और भी कुछ सोचेंगे। इसलिए मेरा मन है और उस मन से सोचना पड़ेगा मेरे ठाकुर आप इस स्थिति में क्या करते, आपको यदि ढेला मारता तो आप क्या करते, आपको यदि गाली देता तो आप क्या करते, आपसे कोई अनज्ञ आचरण करता, कोई मंद आचरण करता तो आप क्या करते। मैं हूबहू ऐसा करने का कोशिश करते रहूंगा। हमको इच्छा नहीं करेगा, एकदम इच्छा नहीं करेगा, हमको लगेगा कि जैसा हम थे वैसा ही हम करें। लेकिन यही है ठाकुरत्व जागना, मेरे ठाकुर आप कैसे हैं वही सोच के हम जब आचरण करने का कोशिश करते हैं वही है ठाकुरत्व जागना। और ठाकुर बोल रहे हैं
जब तक ठाकुरत्व नहीं जगेगा कोई तुम्हारा ठाकुर नहीं है, केंद्र नहीं है। ये ठाकुरत्व हम सब में जगना चाहिए। मेरे ठाकुर आप कैसे आचरण करते, इस स्थिति में मेरे ठाकुर आप कैसे प्रकाशित करते खुद को, उस आचरण को हम करते जाएंगे, बुद्धि से करते जाएंगे। ये बुद्धि करते करते एक दिन ये संस्कार में आ जाएगा, तब सोचना नहीं पड़ेगा मेरे ठाकुर आप कैसे आचरण करते। ये जब मेरे संस्कार में आ जाएगा, परमपिता का संस्कार मेरा ही संस्कार हो गया, तो क्या बोलेगा आदमी कि ये ठाकुर जी का ही आदमी है। इसके लिए हमको पोशाक नहीं पहनना पड़ेगा, कोई बैनर नहीं लगाना पड़ेगा बाबाईदा बोल के कोई आ रहा है। लगाना जब तक पड़ रहा है तब हम अभी तक ठाकुर जी का नहीं बने हैं। आलू में कोई लिख देता है आलू है, नहीं लिखता है, तो बाबाईदा बोल के कोई है इसलिए उसको लिखना पड़ता है बाबाईदा, रेवरेंड बाबाईदा। आप लोग ने बैनर लगाया ना, हम उड़ीसा में देखा कई कई जगह में, हमने बोल दिया था कहीं मेरा बैनर मत लगाइएगा, लेकिन लगाया जब तो मैं आलू जैसा नहीं हूं, मेरा कोई काम में कमी रह गया है, इसलिए बैनर लगाना पड़ रहा है अभी भी। तो बात वो नहीं, अभी ये संस्कार जब हम लेके चलेंगे, ठाकुर जी को प्रकाशित करते रहेंगे, फल पकने से क्या होता है, फट जाता है, उसका प्रकाश होता है। तो हम यदि मूली खाते हैं तो मूली का ढेक उठता है, तो वैसा हमारा ठाकुर जी का आचरण हमारे भीतर घुसते घुसते उसका प्रकाश भी होने का मांगता है। भगवान से पूछा, हे भगवान आप कहाँ रहते हो? तो भगवान ने बोला, न हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनंद हृदयानंद न च, मतलब मैं भगवान ने बोला मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, जोगी के हृदय में नहीं रहता हूं, मेरा भक्त जहां मेरा गुण कीर्तन करते हैं वहीं मैं रहता हूं। खाली जहां जहां हम गुण कीर्तन करते हैं, जाजन करते हैं, जब जब वो सब्जी वाला के पास, वो रिक्शा वाला के पास, वो टांगा वाला के पास, वो ठेला वाला के पास, वो किराया जिसे हम उधार लिए थे उससे जब भागते थे, अभी भागेंगे नहीं, हम सीधा चले जाएंगे, बोले गाली देना है गाली दे दीजिए, मारना है तो मारिए, लेकिन हम आपको पैसा इस महीना नहीं दे पा रहे हैं, क्षमा कीजिए। आपको हम गाली गलौज सुनने के बाद 2 ठाकुर जी का बात बोल के जाएंगे, यही बोलिए, निर्भय होके बोलिए, बोलता शुरू कीजिए, ये प्रकाश करते रहिए, प्रिय का वितरण करते रहिए सामाजिक रूप से। ये प्रिय वितरण से ही जब जब हम प्रिय वितरण करते हैं तब तब ठाकुर जी मेरे पास आके खड़ा हो जाते हैं, तब तब ईश्वर वहां मौजूद होते हैं। जब जब भक्त उनका गुण कीर्तन करता है, भगवान बोला मैं वहीं प्रकट होता हूं, तो भगवान वहीं प्रकट होते हैं। और ये जो प्रिय वितरण करते हैं, अपना सबसे प्रिय जिन्हें प्रिय वस्तु जब हम किसी को देते हैं तो क्या होगा, संपर्क पैदा होता है, ये प्रिय बांधवता तैयार हो जाएगा सामाजिक रूप से। ऐसे ऐसे आदमी जुट जाएंगे मेरा जीवन में जिसके साथ मेरा कोई स्वार्थ संबंध नहीं, ये प्रिय बांधव जो है यही मेरे काम में आएंगे। कैसे आएंगे? एक कल्पतरु था, उस कल्पतरु छाया में एक पथिक बैठे, सोचा उस कल्पतरु में जो भी मन्नत मांगता, जो भी इच्छा करता वही पूर्ण हो जाता। तो कल्पतरु के छाया में एक पथिक बहुत थका हुआ बैठा हुआ, सोचा कि खाना यदि मिल जाता तो अच्छा होता, तो खाना अचानक आ गया। खाना भरपेट खाने के बाद सोचा एक बिस्तर हो जाता तो बहुत अच्छा होता, बिस्तर भी आ गया। मेरा कोई स्वार्थ संबंध नहीं, इसी के प्रार्थना से हो सकता है मेरा उपाय। जब हम अपने माँ बाप भाई बहन पति पत्नी सबके लिए प्रार्थना करते हैं, इसको कहते हैं सकाम प्रार्थना। ये प्रार्थना ईश्वर नहीं ग्रहण करते, किसी का सकाम प्रार्थना हम अपने बेटी के लिए करते हैं, हम अपने बेटा के लिए करते हैं, हम अपने भाई के लिए करते हैं, अपने बाप के लिए, माँ के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, कोई प्रार्थना ईश्वर नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सब सकाम प्रार्थना है। जिसमें स्वार्थ जुटा हुआ है वो प्रार्थना कभी ईश्वर नहीं लेते हैं, इसको कहते हैं सकाम प्रार्थना। और ये जो प्रिय बांधव जो जुटाए थे, ये लोग जब मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, ये है निष्काम प्रार्थना। मैं वो दादा के लिए करूं तो निष्काम प्रार्थना, वो माँ के लिए करूं तो निष्काम प्रार्थना, वो बहन के लिए करूं तो निष्काम प्रार्थना, वो भाई के लिए करूं तो निष्काम प्रार्थना। इन लोग के साथ कोई मेरा स्वार्थ संबंध नहीं, फिर भी मैं इन लोग के लिए यदि प्रार्थना मांगूंगा तो ये प्रार्थना पूर्ण हो जाएगा। थकान सा लगता था और तू रोड पड़ती थी भूख के लिए, तब हम तुझे दूध पिलाते थे। आज तू यदि उलट पुलट चलती है तो मेरा मन में बहुत कष्ट होता है। ऐसा करके हृदय खुलेगा एक परिवार का, ऐसा हृदय खोलने से एक
पीछे तैयार होगा। ऐसा पारिवारिक बंधन से इस परिवार के द्वारा ही समाज का कोई कल्याण हो सकता है, समाज का कोई मंगल हो सकता है, देश का कोई मंगल हो सकता है। मानिए धरती के बाहर से कोई भगवान आके हमको बचाएगा नहीं। आपको ऐसा कोई पाखंडी मिल भी गया कि बोलेगा कि तथास्तु तथास्तु करके हम दोबारा सब मुरादे पूर्ण कर देंगे। अभेदा काल कर्म के जाल में रही भोगत खेला, जगत जीव भर मत फिरे नित चारु खानी
buhay. Bujiya ko ni ma'am. Bujiya. Pakai yang side.